So, good evening, my dear students. As you all know, I am Paras Agrawal and it is your channel, that is Chemistry Learning. So, the today's topic is not from 9th class and not from 10th class. It is the basic of both the classes. Means that I am going to discuss today, that is electronic configuration and the chemical formula. So that is in the 9th class and it is the basic of the 10th class. Why I have made this lecture? This lecture I have made because many students are having problem in the formula formation in the 10th class. So this video is especially for them. Easily you can learn the formula because here I will explain you and you will get all the charges or the valency, so that it will be beneficial for you. But again I am saying to you, my dear students, to please like and subscribe my channel. You can to support my journey. Thank you. Now let's begin with the electronic configuration first. So I hope you all know that in our periodic table 118 elements are there. This you know, that total number of elements in the periodic table are 118. Out of these 118 elements, 92 are naturally occurring. These 92 elements are naturally occurring, my dear students, and the rest elements are artificially prepared. The rest elements are artificially prepared. Clear? So for them only. Now what is the need of electronic configuration? By the electronic configuration we will get the three things. What three things we will get, my dear students? That first one is the valency or the charge. I hope most of you know about the valency. Valency means the charge shown by any element or by any atom. सारे एलिमेंट्स के पास अपना अपना कोई ना कोई चार्ज है. दैट मे बी अ पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी अ नेगेटिव चार्ज. क्लियर? सो फॉर दैट, माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट थिंग वी विल गेट द वैलेंसी और द चार्ज ऑफ द एलिमेंट. सेकेंड थिंग, it will come to know that whether a element is a metal or it is a non-metal. And the third most important thing, by that only we can make the formula. That formula we are studying in 10th class, that sulfuric acid H2SO4, how it forms, or PbNO3 whole twice, how it forms. So for that you all have to learn the charges. And from where the charge came, my dear student? That came from the electronic configuration. So for the element, easily you can learn the atomic number and you can find out the charge on that particular element. But the thing is that if the element is not given to you, sometimes ions are in the combined form, means two or more than two elements are there. So for that, my dear students, you have to learn the charge. At last of the video you will get a sheet, all the important charges that I have written there. From there you can note them. That will work in a 9th, 10th, 11th, 12th class. Clear? So my dear students, the charge, electronic configuration that we are going to start, that concept is given by Niels Bohr. Electronic configuration concept is given by Niels Bohr, and according to the Niels Bohr, each and every element has the different energy shell. सारे एलिमेंट्स की अलग अलग एनर्जी पावर है. आप लोगों को पता है जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है दैट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. नाउ proton and neutron are in the nucleus
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होंगे एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर revolving in the shells around the nucleus. These are the shells. This is the first shell, this is the second shell, and so on. Now all the shells have the different energy level. All the shells have different energy level of holding the electron. Clear? अब हमें कैसे पता लगेगा किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? So for that Niels Bohr gave one formula for determining the energy level of each and every shell, that is 2n square. What is the formula? 2n square. Now what is this 2n square? Here n stands for number of shells. Clear? n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ शेल है. अब हमें पता करना कि पहली शेल में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं. This 2n square formula will give the maximum capacity of the electron in that particular shell. So it is the first shell, so the value of n will be 1 here. So 2 square of 1, then that means in the first shell we can fill only 2 electrons. Clear? Like that second shell, n value will be 2. So 2 square of 2, 2 square is 4, 4 multiplied by 2, that is 8. Clear? Like that if third shell is there, then 2 square of 3, 9, 9 to the 18 and so on. Clear? पहली शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं. दूसरी शेल में 8, not more than that. थर्ड में 18, like that. फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50 and so on. But the thing is that in this electronic configuration exceptions are there, but till 10th class we have to use this same electronic configuration. Clear? अब जो पहली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल है उनको नील्स बोर ने के से स्टार्ट करा था. He gave the first shell, he indicates the first shell as K, second shell L, third shell M and fourth shell N. K, L, M, N. That's why this model is also known as octet rule or KLMN model. Clear? It is important, many times it is asked also what is the another name of KLMN model, that is octet rule. अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑक्टेट रूल नाम क्यों दिया गया. दिस मच इज क्लियर. द थिंग इज दैट ओनली फॉर दिस यू हैव टू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. क्लियर? टिल 30 ऑल कैन लर्न इजीली. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू विल सी विद द स्टार्टिंग we will see the electronic configuration of element which is having the atomic number 5. We have assumed any element X that has the atomic number 5. Clear? अब इसका atomic number 5 है. वैसे तो ये element कौन सा है? बोरोन. But I have assumed here it as X element which is having atomic number 5. Now we have to find out the electronic configuration of this element. Or we have to identify the nature of the element. That is very important, that whether it is a metal or a non-metal. So for that you all know one thing, 2 important formulas I am telling you. One is for atomic number, another one is for mass number. Atomic number of the element, atomic number of the element is always equals to number of electron and equals to number of proton. You all know my dear students that atom is electrically neutral. atom पे कोई चार्ज नहीं होता ना. That will be in the ionic form. ionic form में चार्ज होता है, आइंस पे चार्ज है. एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे पता है आपको चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है,
सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है बट इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, उतने ही उसमें प्रोटॉन है, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल। क्लियर? एटम में कोई चार्ज नहीं होता, बट व्हेन द एटम इज इन द आयनिक फॉर्म देन इट विल शो द चार्ज। क्लियर? This formula now you write mass number formula we'll discuss later. So if you want to write you can, mass number is equals to number of protons plus number of neutron. अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है हमारा, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, जो मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का कंसीडर करते हैं हम, दैट इज इन द न्यूक्लियस ओनली। अब न्यूक्लियस में क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मास नंबर क्या हो गया, सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर? नाउ वी विल कम टू अवर टॉपिक, दैट इज अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन से रिलेशन, इलेक्ट्रॉन शेल्स में है। अगर हम किसी एटम को ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियस तो बीच में है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में है, साइड वाइज क्या है, शेल्स, और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जब हम उसको निकालेंगे, ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले शेल्स ब्रेक होंगी शेल्स, तो सबसे पहले कौन निकल कर भागेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल रहे हैं या दूसरे एलिमेंट से ही हम इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। क्लियर? अभी और क्लियर हो जाएगा। तो ए एलिमेंट जो 5 है, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है, पहली शेल की पावर है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, दूसरे की है 8, तीसरे की है 18, अभी हम इतना ही लिख ले रहे, 5 है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पहली शेल में चले गए, कितने बचे, 3। अब ज्यादा से ज्यादा हम दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते, 8, लेकिन बचे तो 3 ही है, तो हम क्या कर देंगे, 3 भर देंगे। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,3। दूसरा एलिमेंट हम ले लेंगे एल्यूमिनियम, सेम ग्रुप का है, 13 ग्रुप का, और एटॉमिक नंबर कितना है, 13। अब सेम 13 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13। तो पहली शेल में कितने, 2। अब कितने बचे, 11 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना। दूसरी शेल में कितने भर सकते, 8, तो 8 भर दिए, 8 और 2 10। अभी कितने बचे, 3 बचे। थर्ड शेल में हम 18 भर सकते, लेकिन बचे तो 3 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 भर देंगे। क्लियर? सोडियम ले लिया हमने, 11 एटॉमिक नंबर है, पहली शेल में 2, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, then in second shell 8, third shell 1 is left, 1। clear? क्लोरीन ले लिया हमने, 17, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, अब कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, 18 भर सकते लेकिन कम है हमारे पास, तो हम 7 भर देंगे। क्लियर? अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सिंपल वाला हुआ, अभी हम आगे भी चलेंगे, लेकिन इसके पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग, आउटर मोस्ट शेल है ना ये, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? आउटर मोस्ट शेल में अगर important trick, this you can note down, to identify which element is a metal or which one is a non-metal. Clear? इससे हमें मेटलाइट का तो पता नहीं लगेगा, वो हमें लर्न करना पड़ेगा, बट मेटल और नॉन मेटल का हम पता लगा सकते हैं। So you can write if the last shell पता है ना, एक K shell है, ये L shell, इसमें लास्ट शेल कौन सी है, L, KLM, in that M shell is last shell,
KLM, in that M shell last shell or in that also M shell is last shell. Clear? अब हमें पता कैसे चलेगा एल्यूमिनियम इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ मेटल और नॉन मेटल. फॉर दैट how you will identify, my dear students? So for that, if the last shell is having 1, 2 or 3 electron, if the last shell is having 1 electron, 2 electron or 3 electron, then the particular element is a metal. Clear? This is important. From here definitely 110% you will get 1 mark question. If the last shell is having 1, 2 or 3 electron, अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ लास्ट शेल में, लास्ट शेल कोई भी हो सकती, जरूरी नहीं है के शेल लास्ट शेल हो सकती, एल शेल लास्ट शेल हो सकती, एम शेल लास्ट शेल हो सकती. तो जो लास्ट शेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल हो जाएगा. ठीक है ना? तो अब देखो एल्यूमिनियम की लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम क्या हो गया? मेटल, क्योंकि हमें पता है 1, 2, 3. सोडियम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेटल हो जाएगा. अब नॉन मेटल क्या होगा? अगर किसी एलिमेंट की शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 7 तक, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 3 नहीं होना चाहिए, 3 में तो मेटल है, 4 हो, 5 हो, 6, 7. If the last shell is having 4, 5, 6, 7 electron in its valence shell means outermost shell, then the particular element is a non-metal. ठीक है ना? अब अगर outermost shell में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, वैसे 8, लेकिन अभी हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखेंगे. If the last shell is having 8 electrons in its outermost shell, then it is a noble gas. If the outermost shell is having 8 electrons, for example argon, argon के atomic number है 10, इसको 2, 8, इसकी outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन है, noble gas या inert gas भी बोलते हैं. मैंने इनर्ट गैस और नोबल गैस का मतलब है दे विल नेवर गोइंग टू रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट. ये कभी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे. रिएक्शन होती क्यों है? एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हो क्यों रही? क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, तो वो एक दूसरे से जुड़ के फॉर्मूला बना लेते, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड. और एक दूसरे से जुड़कर वो फॉर्मूला कंपाउंड बना लेते तो वो स्टेबल हो जाते. क्लियर? जैसे सोडियम है, सोडियम स्टेबल नहीं है, क्लोरीन है, क्लोरीन स्टेबल नहीं है. स्टेबल कब होंगे ये? जब इनकी आउटर मोस्ट शेल में, जैसे सोडियम है, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा. क्योंकि यही तो देख रहे हैं हम नोबल गैसेस में कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा. और क्लोरीन कब स्टेबल होगा? जब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. तो इसलिए सोडियम और क्लोरीन दोनों कहते हैं चलो फॉर्मूला बना लें, एक दूसरे से रिएक्शन करा दें, तो वो दोनों अपने में 8-8 इलेक्ट्रॉन कर लेते. ठीक है? तो वो दोनों स्टेबल हो जाते. क्लियर? तो रिएक्शन क्यों हो रही? रिएक्शन इसलिए हो रही कि सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? स्टेबल. क्लियर? अब हमें वैलेंसी की बात करना, जिस पे हमारा ये पूरा टॉपिक बेस्ड है. इसके पहले वैलेंसी देख ले रहे हैं हम. अब वैलेंसी का पता कैसे चलेगा? किस पे प्लस चार्ज है, किस पे माइनस चार्ज है? सेम कॉन्सेप्ट याद कर लो. अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो एलिमेंट मेटल तो है, साथ में उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. कैसे? सोडियम के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1. क्लियर? एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में 3, 1, 2, 3 बस. सो एल्यूमिनियम पे कितना? 3 आउटर मोस्ट शेल में, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? 3+ चार्ज आ जाएगा. क्लियर? अब नॉन मेटल्स की बात करें. नॉन मेटल्स में हमने देखा 4, 5, 6, 7, यही है ना? 4, 5, 6, 7. तो इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वैलेंसी निकालने का. वैलेंसी का फॉर्मूला होता है वैलेंसी
इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, बट दिस इज ओनली फॉर द नॉन मेटल्स। मेटल्स के लिए कुछ नहीं करना, एक इलेक्ट्रॉन है अगर आउटर मोस्ट शेल में प्लस एक चार्ज, 2 है प्लस 2, 3 है प्लस 3, लेकिन 4 5 6 7 है तो उसके लिए फॉर्मूला है वैलेंसी इक्वल टू, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पे हमें चार्ज निकालना, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 7 मतलब 1 माइनस 1। क्लियर? अगर ऐसे नहीं लिखना, फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो फॉर्मूला में? वैसे फॉर्मूला ही है लेकिन आप लोगों को माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला को आप थोड़ा चेंज कर लें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल माइनस 8। अब देख लो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल को पहले लिखना है, माइनस 8 करना है, तो वैलेंसी आपकी माइनस में ही आएगी। वैसे वैलेंसी के लिए ना पॉजिटिव लगाना जरूरी है ना नेगेटिव लगाना जरूरी है। दैट इज द चार्ज शोन बाय एटम। धीरे धीरे आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा। क्लियर? तो वैलेंसी में वैलेंसी इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में, 7 माइनस 8 देन इट विल कम माइनस 1। क्लियर? एक चीज और, अगर नेगेटिव वैलेंसी है तो नॉन मेटल, पॉजिटिव वैलेंसी है तो मेटल। इतना क्लियर है? अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म नहीं हुआ, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो सिंपल था, अब हम देखेंगे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है। तो 20 से ज्यादा में हमने मान लिया मैग्नीशियम ही ले लिया, और एक हमने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम 19, मैग्नीशियम 20। एटॉमिक नंबर आप सभी को 30 तक लर्न करना पड़ेगा, 30 नहीं तो एटलीस्ट 25 तक तो याद कर ही लो। तो पोटेशियम 19 है, पहली शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, भर दिए, 17 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 8 भरे हमने, अब 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, बचे ना। लास्ट शेल में, थर्ड शेल में हम 18 भर सकते, तो हम इधर कितने भर देंगे? अभी 9 भर देंगे। हो गया? हो गया? नो, इट इज रॉन्ग। क्यों गलत है? हम तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न फॉलो तो कर रहे हैं हम, लेकिन एक चीज और याद रखना है हमें नील्स बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। वो क्या है कि अगर एलिमेंट को स्टेबल कर रहे हैं तो अगर थर्ड शेल में या किसी शेल को फिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए उतने नहीं है, 18 चाहिए थे, 18 नहीं है, लेकिन 8 से ज्यादा है, तो पहले उस शेल को हम 8 इलेक्ट्रॉन भर के उसकी स्टेबिलिटी, मजबूती बढ़ाएंगे। क्लियर? उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे हम। कैसे? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर के। अब 8 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरेंगे हम। 2 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, 8 इलेक्ट्रॉन भरे, अब 9 बचे ना। 18 भरने, 18 नहीं है लेकिन हमारे पास 9 है जो कि 8 से ज्यादा है, तो अगर हम थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो हमारी शेल की एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो 8, अब क्या बचा? 1 बचा, तो 1। क्लियर? अब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? मेटल। वैलेंसी कितनी होगी? +1। सरल है ना? मैग्नीशियम का देख लो, मैग्नीशियम में क्या करना हमें? मैग्नीशियम में हम एक काम करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे? 12। 12 बचे, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, भरने तो 18 है, 18 नहीं है, 8 से ज्यादा होता ना 10, तो पहले हम इसमें 8 भर देंगे और फिर कितने भर देंगे? 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। मेटल। आ गया ना समझ में? दिस इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये क्या है? बेसिक है।
अब इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूला, इन्हीं चार्जेस से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। इसके लिए आपको मैंने शीट दी है, आप लोग शीट से सिर्फ चार्ज लर्न कर लो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल ऑटोमेटिकली easily you can make each and every formula, and I have given in that 35 elements in the ionic form that are sufficient for your 9th and 10th both the classes. Clear? अब केमिकल फॉर्मूला बनाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर चार्जेस लर्न कर लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा 9th क्लास के लिए, ड्रॉ फॉर्मूला या वर्कआउट ऑन द फॉर्मूला बिटवीन जिंक एंड क्लोरीन। जिंक और क्लोरीन के बीच में फॉर्मूले पे हमें वर्कआउट करना है। तो अब जिंक और क्लोरीन के बीच में हम कैसे वर्कआउट करेंगे फॉर्मूला के बीच में? तो देखो, हमें सबसे पहले चार्ज याद रखना है, जिंक का Zn और क्लोरीन का Cl, ठीक है। अब जिंक और क्लोरीन के लिए हमें फॉर्मूले में Zn और Cl दो फॉर्मूले सिंबल याद रख लिए। चार्ज लर्न कर लेना जो शीट में आपको दूंगा। जिंक का चार्ज होता है +2, लिख दिया। क्लोरीन का चार्ज है -1। अगर साइन नहीं भी लगाना मत लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Zn का 1 के साथ हुआ, Cl का 2 के साथ हुआ, फॉर्मूला बन गया हमारा ZnCl2। बस ऐसे याद रखना है। क्लियर? दूसरा कैल्शियम है। अब बात करेंगे हम सल्फेट या ऐसे कंपाउंड्स की आयनिक फॉर्म में जिनके चार्ज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। SO4, अब इसकी निकालने का भी तरीका है लेकिन निकाल नहीं सकते, आप लर्न कर लो। कैल्शियम 2+, सल्फेट 2-, या 2 सेम चार्ज है, कैंसिल कर दो इधर ही, 1 बचा 1 बचा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो Ca का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी SO4 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फॉर्मूला बन गया CaSO4, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? लाइक दिस यू ऑल कैन मेक द फॉर्मूला। एक इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वर्कआउट द फॉर्मूला बिटवीन सोडियम और बाइकार्बोनेट। सिंबल पता होना चाहिए, सोडियम Na, बाइकार्बोनेट HCO3। सोडियम पे चार्ज है 1, कार्बोनेट पे, बाइकार्बोनेट पे भी 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, NaHCO3। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट बनाना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम 1 कार्बोनेट 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na का 2 के साथ, Na2CO3। जिंकेट के साथ बनाना, सोडियम जिंकेट ZnO2, सोडियम 1 जिंकेट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2 ZnO2। इसको 10th क्लास में पढ़ेंगे जिंकेट के बारे में। क्लियर? सो दीज एग्जांपल्स आई हैव गिवन that are sufficient for you for understanding the chemical, how to make the formula. And the second thing, my dear students, now easily you can make all the formulas because the charges that I have given in the sheet that are sufficient. But the thing is that you all have to learn the things that I am giving you continuously. I told you honestly I will give you full content of chemistry 9, 10th, 11, 12. Now I am not working properly on the 11th and 12th because I have to focus for the 10th class especially. You have to cooperate for some time only. After that you will get sequence wise all the videos of 9, 10th, 11, 12 continuously. I will not miss even a single topic, but you have to cooperate with me, and please like and subscribe my channel
so that I can take more and more interest in making the videos. Thank you.